So once again back to our lecture of social studies, and few chapters are remaining, that is I think so chapter 19 and chapter 20, and I think so 2 or 3 chapters are just remaining. Few of them are cut off, few we had already done and they were cut off from your syllabus. So now 3 to 4 chapters more to go. But before your Diwali vacation, I would like to hand over to you this particular chapter completed so that you can revise it in your Diwali vacation, as you are going to get a big vacation from your school itself, of course. And manufacturing industry is going to be a very interesting chapter. It's going to be easy, and it will become more easy after having a look at the few videos that I'll be sending to you after this particular lecture, right? So manufacturing industries. Now first of all, there will be different types of industries that you are going to learn over here. That is cottage industry, small scale industry, large scale industry, light industry, heavy industry, agro based industry, mineral based industry. So industries are divided in various forms on the basis of various features, and is divided into different categories which you will learn over here. So let's start. Now, the process in which man can change the natural resource into usable condition according to his intellectual, cultural, economic capacity is called industry. Very important, your one mark, very very important. What do you mean by industry? जब भी कोई natural resource को human being convert कर दे by using his intellectuality, money, other various capacities that he has with him, तो उस natural चीज़ को जब convert कर दे into some usable product, तो पूरे process को जो हम जिसमें हम convert कर रहे हैं इस चीज़ को from natural to finished product, usable product, is called industry. So once again, process in which man can change the natural resource into usable product according to his intellectual, cultural and economic capacity is called dash. That is industry. In India, industrial tradition are found since the Indus Valley civilization, और industries जो since Indus Valley civilization से चलता आ रहा है इंडिया में. At that time, India used to prepare cotton textile, clay utensil मतलब मिट्टी के बर्तन बनाते थे, cotton textile बनाते थे. We had bell metal things made of bell metal and beads. Till 18th century, India was ahead in shipbuilding industry, learn it. India was also ahead in handicraft and cottage industries. There was great demand of Indian cotton cloth, muslin cloth, metallic utensils, ornaments, etc. तो इंडिया की हर एक चीज़ों की डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड थी, फिर वो कॉटन क्लॉथ हो या मसलिन क्लॉथ हो या यूटेंसिल्स और मेटल के बने हुए या हमारे इंडिया में बने हुए ऑर्नामेंट्स, या हम लोग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में भी बहुत आगे थे. विद द बिगनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड नेचुरली, लेकिन जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, सबसे पहली इंडस्ट्री उनके यहाँ स्टार्ट हुई, तो ब्रिटिशर हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल उठाने लगे. फिर तो जैसे यहीं पे रूल करने लगे तो फ्री में उठा के ले गए, वहीं पे इंग्लैंड में बनाया अपनी इंडस्ट्री में विद द हेल्प ऑफ मशीनरी एंड विद द टेक्नोलॉजी दैट दे हैड, एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम अस एट अ चीपेस्ट कॉस्ट. दे टुक अवे द रॉ मटेरियल, फिर उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया और हम ही को आके बेचा डबल द कॉस्ट में, राइट. स्पेशली रॉ कॉटन वो हमसे लेके जाते थे. They used to follow the policy of selling goods manufactured in England at higher price in India so that Indian market would collapse. अब हमसे रॉ मटेरियल ले जाना चीपेस्ट फॉर्म में बनाना विद हेल्प ऑफ मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम बनाते थे वही चीज़ एक दिन में एक या 10 दिन में एक, क्योंकि हाथ से बनाते, वो वही चीज़ एक दिन में लाखों बनाते, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे चला गया उनका, तो नेचुरली सेलिंग प्राइस भी कम हो जाती हमारे कंपैरिजन में. तो नेचुरली जब वो चीज़ वो इंग्लैंड में बना के हमारे यहाँ बेचने आते लो कॉस्ट में, मतलब कि हमारे लिए तो कंपैरेटिवली, व्हाट एम आई ट्राइंग टू से इज
कंपेयरिंग टू इंडियन प्राइस उनकी प्राइस कम थी, बट दे यूज्ड टू लूटर्स लाइक एनीथिंग, मतलब कि धीरे 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 प्राइस बढ़ाने लगे प्रोडक्ट की, हमारी सारी इंडस्ट्रीज कोलैप्स होने लगी. ऑल दी कॉटेज इंडस्ट्रीज, होम इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, सब कुछ कोलैप्स होने लगा. सो विद द बिगनिंग ऑफ इंडस्ट्री इवोल्यूशन, ब्रिटिशर्स यूज्ड टू टेक अवे रॉ मटेरियल, especially raw cotton from India. They used to follow the policy of selling the goods manufactured in England at higher price in our country. So Indian market would collapse. This damaged the textile industry and Indian craftsmen of India heavily. तो उन्होंने जिस प्राइस से हमें सब चीज़ें बेचना शुरू की, हमारी मार्केट कोलैप्स होने लगी, हमारे क्राफ्ट्समैन डिस्ट्रॉय होने लगे, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री डैमेज हो गई, मतलब डिस्ट्रॉय. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज. So as we move ahead, let us see about what is the importance of all these industries. Now today the existence of nation depends only on the development of industry. मतलब किसी भी कंट्री को डेवलप होना है तो आज के ज़माने में सबसे पहले क्या चाहिए? एक कंट्री को डेवलप होना है तो उसकी इंडस्ट्रीज डेवलप होनी है. सबसे पहले सारी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तब जाके वो कंट्री डेवलप होगी. इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस विल बी इम्पॉसिबल. और किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट पॉसिबल होगी ही नहीं अगर इंडस्ट्रीज नहीं होगी. तो विदाउट इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल. दोज कंट्रीज विच हैव डेवलप मोर इंडस्ट्रियली हैव स्ट्रेंथन द इकोनॉमी इक्वली. अब जिन जिन कंट्रीज में इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है परफेक्टली, उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग बनी है. कंट्रीज लाइक यूएस एंड रशिया, जापान, साउथ कोरिया आर वेरी रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. अब ये सारी कंट्रीज दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, इन सब ने अपने इंडस्ट्रीज को डेवलप किया. अब ये इंडस्ट्रीज को डेवलप इतना किया कि वो खुद इतनी रिच दैट इज प्रॉस्परस और डेवलप कंट्रीज बनी. दोज कंट्रीज वे इंडस्ट्रीज आर ईदर नॉट डेवलप्ड और आर लेस डेवलप्ड, आर नॉट केपेबल टू हार्नेस द नेचुरल रिसोर्सेज इंडस्ट्रियल रॉ मटीरियल. अब वो कंट्रीज जहाँ पे इंडस्ट्रीज थोड़ी बहुत डेवलप हुई है या बहुत कम डेवलप हुई है, तो वो अपने नेचुरल रिसोर्स को यूज ही नहीं कर पा रहे हैं एज रॉ मटीरियल फॉर इंडस्ट्रीज. दे हैव टू सेल देयर नेचुरल रिसोर्स एट अ चीपर रेट एंड परचेज द थिंग मेड ऑफ द सेम रॉ मटीरियल फ्रॉम फॉरेनर्स एट हायर प्राइस. नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट. सबसे पहले कि कोई भी एक कंट्री ले लो XYZ. अब उस कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उस नेचुरल रिसोर्स को वो रॉ मटेरियल की तरह यूज नहीं कर पाते इंडस्ट्रीज में, क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं है उनके पास डेवलप. अब हुआ ये कि इतना सारा जो नेचुरल रिसोर्स है वो दूसरी कंट्री उनके पास लो रेट में खरीद के चली जाएगी, और दूसरी कंट्री जो उनके पास रॉ मटेरियल खरीद रही है एट लो कॉस्ट, ये सारा रिसोर्स रॉ मटेरियल, वो कंट्री डेवलप हो रही है, पैसे वाली बनती जा रही है. तो लॉस हुआ XYZ कंट्रीज को, जिनके पास रॉ मटेरियल तो बहुत है, नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, राइट. तो वो सेल कर देते हैं लो प्राइस पे, और फॉरेनर्स उसी रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बना के हायर प्राइस में बेचते हैं उन्हीं कंट्रीज को. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट 29% ऑफ नेशनल प्रोडक्शन ऑफ आवर कंट्री. हम जितना भी प्रोड्यूस करते हैं उसमें से हमारा कंट्री का प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितना करवा के देती है? 29 to 30%. एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल ब्रोक द बैकबोन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर. अब इंडियन इंडस्ट्रीज तो बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन ब्रिटिशर जब आए तो उनका जो रूल था, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी, वो हमारे इंडस्ट्री के बैकबोन को तोड़ के चली गई. ड्यूरिंग स्लेव वर्क पीरियड, मतलब कि जब हम स्लेव्स थे, जब हम उनके अंडर थे, जब वो हमें रूल कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड ड्यूरिंग स्लेव वर्क पीरियड, इंडस्ट्रीज विद मॉडर्न मेथड्स कुड नॉट बी स्टार्टेड इन आवर कंट्री. In 1853, first industrial complex of iron furnace based on charcoal was founded. Learn all this, all for your 1 mark. So, during slave work period, industries with modern methods could not be started in India, right? हम नई मेथड वाली इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं कर पाए क्योंकि हम तो उनके नौकर थे. In 1853, first industrial complex of iron furnace based on charcoal, that is कोयला, was founded, but it failed. तो सबसे पहले इंडस्ट्री स्टार्ट तो हो गई आयरन फर्नेस की,
कोयले के बेसिस पे, लेकिन वो फेल हो गई इन 1853. फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट वॉज मेड अगेन इन 1854 इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. एक साल के बाद वो. देन आफ्टर जूट मिल वॉज एस्टेब्लिश, उसके एक साल बाद दैट इज इन 1855 एट रिश्रा नियर कैलकाटा. फिर उसके 19-20 साल बाद इन 1874 फैक्ट्री वॉज फाउंडेड एट कुल्टी फॉर मेकिंग आयरन, which was closed after a few years. It was started in 1881. In 1907, a new dimension was provided with the founding of Tata Iron and Steel Company at Jamshedpur. Now let's classify the industries. Industries are divided, spelling गलत है यहाँ पे. Industries are divided on the basis of, first of all, कितने laborers हैं, ज़्यादा हैं या कम. So on the basis of human labor, on the basis of how many workers. Second, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, गवर्नमेंट है, जॉइंट है, पार्टनरशिप है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दैट इज जॉइंट सेक्टर है या प्राइवेटाइजेशन है. फिर सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, कौन से रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड, मिनरल बेस्ड. तो इंडस्ट्रीज अलग अलग बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन लेबर इंडस्ट्रीज कैन बी कॉल्ड स्मॉल और लार्ज स्केल. कम लेबरर्स हैं तो स्मॉल स्केल, ज़्यादा लेबरर्स हैं तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. Those industries where more laborers are employed is called large scale industry. For example, cotton textile industry is large scale. Industry wherein when an industry is under direction of individual ownership and number of laborers is less is called small scale industry. For example, sugar और खानसर industry. अब एक इंडस्ट्री जिसका ओनर एक इंडिविजुअल है, लेबरर्स बहुत कम है, काम करने वाले बहुत कम एम्प्लॉय हुए हैं, तो उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लेंगे. फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री या खानसर इंडस्ट्री. बिसाइड दिस इंडस्ट्रीज ऑल्सो कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइवेट, पब्लिक, कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव एटसेट्रा. सो इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इन मेनी वेज. ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ रॉ मटीरियल, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रो बेस और मिनरल बेस. अब रॉ मटेरियल के बेसिस पे देखें तो इंडस्ट्रीज को हम या तो एग्रो बेस इंडस्ट्री में डिवाइड कर सकते हैं या मिनरल बेस. अब एग्रोबेस इंडस्ट्री को डिटेल में देख लेते हैं. कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, सिल्क, वुलन, शुगर, पेपर एट्सेट्रा, ये सारे रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर बेस्ड हैं. उसके रिलेटेड इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है. ऑल दिस इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल दैट वी गेट फ्रॉम एक्टिविटी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विथ कॉटन टेक्सटाइल. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्कर, 4 मार्कर में ही पूछा जा सकता है, प्लस ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे हैं. अब गारमेंट इंडस्ट्री मतलब रेडीमेड ड्रेस इंडस्ट्री हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री इंडिया. दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 3.5 करोड़ पीपल. मतलब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा लोगों को काम दे रही है. 3.5 करोड़ पीपल आर एंगेज इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज एम्प्लॉयज. टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड्स maximum employment in the country to the people as employees, as I told you. India holds second rank after China in the export of cotton textile. It is the main industry from production and employment point of view. चाइना के बाद इंडिया का सेकंड रैंकिंग है कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने में. प्रोडक्शन में भी हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है हमारे यहाँ कॉटन टेक्सटाइल का, और लोगों को काम देने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम सबसे ज़्यादा लोगों को काम दे रहे हैं इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. फर्स्ट कॉटन मिल वॉज एस्टैब्लिश इन मुंबई, ऑल 1 marker. Thereafter Shahpur mills and Calico mills were established in Ahmedabad in Gujarat. In the beginning years, मतलब in the starting, in the initial years, cotton textile mill were established in Mumbai and Ahmedabad. These mills were established due to cheap cotton, availability of labor, transport facilities, ports for export, favorable market. तो ये सारे मिल्स एस्टैब्लिश हुए ड्यू टू चीप कॉटन, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर. अभी मिल्स को चाहिए क्या था, कॉटन ऑफ गुड क्वालिटी, बिग क्वांटिटी बट एट लो रेट, तो ये हमें मिल गया. अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर हमारे पास था, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ मिल गई, एक्सपोर्ट करने के लिए पोर्ट्स थे हमारे पास, फेवरेबल मार्केट थी. टुडे कॉटन टेक्सटाइल मिल्स आर लोकेटेड इन 100 cities ऑफ आवर कंट्री. तो व्हाट आर द मेन रीजंस कि दिस मिल्स वर एस्टैब्लिश इन आवर कंट्री? तो दिस आर द रीजन, राइट. और कितनी सिटीज़ में डेवलप हो चुकी है इंडस्ट्री कॉटन टेक्सटाइल हमारे कंट्री में? 100 cities से भी ज़्यादा में. मेन ट्रेडिशनल दैट इज दैट टाइम एंशियंट एंड इम्पॉर्टेंट सेंटर्स एट प्रेजेंट आर, तो पहले भी वही थे, आज भी वही है, आर मुंबई, अहमदाबाद, भिवंडी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर एंड उज्जैन.
There are many more mills in Mumbai and Maharashtra. Hence it is called, very important, learn it. It is called Cottonopolis of India. तो मुंबई में तो ज़्यादा मिल्स हैं, महाराष्ट्र में कॉटन टेक्सटाइल मिल, तो उसको हम कहते हैं कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया. इंडस्ट्री इज ऑल्सो एस्टेब्लिश एट पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद, जलगांव cities. In Gujarat, Ahmedabad is called Manchester of East और डेनिम सिटी ऑफ इंडिया. लर्न इट, वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया मुंबई को कहते हैं, वैसे अहमदाबाद को नाम दिया है मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट और डेनिम सिटी ऑफ इंडिया. बिसाइड cities like Baroda, Kalol, Bharuch, Surat, Porbandar, Bhavnagar, Rajkot, etc. are also included. Coimbatore is the main center of Tamil Nadu. Chennai and Madurai cities are also included here. Main centers in UP, that is Uttar Pradesh, are Kanpur, Etawah, Agra, Lucknow, etc. Indore, Gwalior, Ujjain, Devas are main centers of these industries in Madhya Pradesh. In West Bengal, Kolkata, Howrah, Murshidabad are major centers. Cotton textile industry was set up also in Rajasthan, Punjab, Haryana. Extensive market centers, transportation, banks, electricity have contributed greatly in decentralizing this industry. Now let me make it clear and easy. पहले के ज़माने में ये होता था कि कहाँ पे इंडस्ट्रीज सेट होती थी, तो जहाँ पे उस इंडस्ट्रीज के सेटअप के लिए जो चीज़ें चाहिए थी, लाइक फॉर एग्जांपल कॉटन टेक्सटाइल, तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, लेबरर्स, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, पोर्ट फैसिलिटी, तो वहाँ पे वो इंडस्ट्री इजीली सेट हो जाती. अब ऐसे हो रहा है कि ये इंडस्ट्री कहीं पे भी सेट कर सकते हो, डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब बहुत सारी जगह पे उसको हम, पहले सेंट्रलाइज था, अब डिसेंट्रलाइज हो गया, मतलब पूरे इंडिया में कहीं पे भी तुम स्टार्ट कर सकते हो इंडस्ट्री. वाई? क्योंकि आज सब मिल रहा है हर एक जगह पे. से इलेक्ट्रिसिटी पूरे इंडिया में मिल रही है, लेबरर्स हर एक सिटी में मिल रहे हैं, और ट्रांसपोर्टेशन इजी बन चुका है, तो लॉट मेनी थिंग्स अवेलेबल, मार्केट अवेलेबल है पूरे कंट्री में कहीं पे भी, बैंक फैसिलिटीज अवेलेबल है, बड़ी बड़ी एक्सटेंसिव मार्केट सेंटर्स अवेलेबल है, तो पूरे इंडिया में कहीं पे भी इंडस्ट्री हम सेट कर सकते हैं. टुडे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज फेसिंग टफ कॉम्पिटिशन, वेरी इंपॉर्टेंट टू मार्क ऑन. वाई? ड्यू टू द रीजंस ऑफ फैक्टर्स लाइक इनएडिक्वेट सप्लाई, बेस्ट क्वालिटी और वेराइटी ऑफ कॉटन. आजकल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ही कंपटीशन फेस कर रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छी क्वालिटी का कॉटन ग्रो नहीं हो रहा, बेस्ट वैरायटी ऑफ कॉटन. सेकंड, ओल्ड मशीनरी आज भी यूज़ करते रहते हैं लोग, नई टेक्नोलॉजी नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं, तो पुरानी मशीन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई चला जाता है, रिपेयरिंग भी नहीं करवाते, क्वालिटी फिर कपड़े की ख़राब बनती जा रही है. इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी इरेगुलर है. कंपटीशन फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर क्लॉथ इन द मार्केट. कॉटन कपड़े से अगर कुछ बनाओ तो उसका ध्यान बहुत रखते हैं, आयनिंग करनी पड़ती है, फिर उसका कलर जल्दी फेड हो जाता है, वो महंगा भी बहुत रहता है, उसका ध्यान बहुत रखना पड़ता है उस कपड़े का. आर्टिफिशियल फाइबर को आयनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, सूख जाता है जल्दी धोने के बाद. आयनिंग की, ऐसा आई टोल्ड यू, डजंट रिक्वायर मच ऑफ आयनिंग. कलर फेड नहीं होता, चीपर देन कॉटन. तो competition from artificial fiber cloth in the market, and very great, that is keen competition in world market. India exports cotton textile cloth to Russia, UK, that is US, then that is United States of America, Sudan, Nepal, Australia, France and South African countries. Now next, jute textile in the, so next as we move ahead is related to your jute textile industry. Now jute is the second ranked major industry of our country. India holds first place in the production of jute and goods made from jute. तो jute is second ranked major industry. पहला था cotton textile industry, second is jute industry, and India holds first place in the production of jute and goods made from jute. India is the second place after Bangladesh in the export of jute. तो production हमारे यहाँ ज़्यादा है, finished product हम ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन export में बांग्लादेश first है और इंडिया सेकेंड प्लेस पे है व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्टिंग द जूट प्रोडक्ट. ऑफ द टोटल जूट प्रोडक्शन ऑफ आवर कंट्री, वेस्ट बंगाल प्रोड्यूसेस 80%, आंध्र प्रदेश 10%, एंड रेस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय बिहार, यूपी, एमपी, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा. लर्न इट. सबसे ज़्यादा हमारे 80% प्रोडक्शन हो रहा है वेस्ट बंगाल में, बिकॉज ऑफ द फर्टाइल सॉइल एंड चीप वर्कर्स अवेलेबल एंड नॉट मेनी अदर फैक्टर्स अवेलेबल. देन आंध्र प्रदेश में 10%, और बाकी का जो 10% रहा वो
बिहार, यूपी, एमपी, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा में प्रोड्यूस हो रहा है. मच वाटर इज नीडेड टू प्योरीफाई जूट. अब पानी की यहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है. एंड मोस्ट ऑफ द मिल्स आर therefore located on the bank of river Hooghly. This industry also is seen more. It is concentrated in West Bengal due to, as I told you, more water required to bank of river Hooghly. Second, due to cheap labor force, वहाँ पे सस्ते मिल जाते हैं workers. Bank facilities, insurance facilities, that is insurance coverage, port of export facility available, etc. इसलिए वेस्ट बंगाल में मैक्सिमम यू विल सी जूट प्रोडक्शन. टोटल टुडे यू विल सी दैट द डिमांड फॉर जूट हैज डिक्रीज. वाई? क्योंकि उसके ऑप्शंस आ गए मार्केट में. पैकिंग मटेरियल में लाइक प्लास्टिक आ गया जूट की जगह पे. तो पहले वीट, राइस, एवरीथिंग यूज टू कम इन जूट सैक, कोथड़ा कहते हैं, ब्राउन कलर. नाउअडेज वाइट कलर के प्लास्टिक के बड़े बड़े सैक्स में आ जाती है ये सारी ग्रेनरी एंड ऑल. So today demand for jute has decreased due to because of other option in packing material for goods. Jute industry is facing such problems like more cost of production. अब बड़े प्रॉब्लम क्या फेस कर रही है जूट? दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है और डिमांड इज डिक्रीजिंग फॉर जूट इन इंटरनेशनल मार्केट. सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री. सिल्क प्रोडक्शन हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन. बहुत एंशियंट है ये इंडस्ट्री. आफ्टर चाइना, इंडिया रैंक सेकेंड इन द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन. In India, 4 types of silk are produced: learn it, mulberry, eri, tussar and munga. Today there are more than dash, that is more than, or there are about 300 silk weaving mills in our country. Major state producing silk are हर एक जगह पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सब जगह पे है. तो इंडिया में है ये इंडस्ट्रीज. वी हैव इट एट कैलकटा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू कश्मीर. These are major state producing silk. Silken clothes are exported to Europe, Africa, Gulf countries. Besides this, there are also these also exported to Germany, Singapore, USA, Kuwait, Malaysia, Russia. In international market, Indian silk is facing tough competition from China. अब इसके बाद आता है वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. अब ये सबसे पहला हमारी कॉटेज इंडस्ट्री थी, राइट? बहुत ओल्ड इंडस्ट्री है ये. एज अ कॉटेज इंडस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वेरी ओल्ड. मैक्सिमम वुलन टेक्सटाइल मिल्स आर इन पंजाब. जहाँ पे ज़्यादा ठंड होगी वहाँ पे तो वुलन टेक्सटाइल मिलेगी. नेक्स्ट कम महाराष्ट्र. देर आर वुलन टेक्सटाइल मिल्स एट यूपी ऑल्सो, अहमदाबाद, जामनगर इन गुजरात. These are the centers of woolen clothes. Other major centers are Bikaner, Jaipur in Rajasthan, Srinagar in Jammu Kashmir, Bangalore in Karnataka. India also produces woolen carpets. Woolen cloth is exported to America, Canada, Germany, France, Russia, etc. You can very clearly see over here, that is जो black dots हैं, that is related to your cotton textile industry. So let's see. अब बहुत ही क्लियरली यहाँ पे तुम्हें दिखाई देगा ब्लैक डॉट्स. जलगांव, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, राजकोट, पोरबंदर, उज्जैन, देवास, इंदौर. Here you can see कोयम्बतूर, मदुरई. These are all cotton textile. अब वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ब्लू ट्रायंगल, तो इट इज़ बैंगलोर. सिल्क भी है, वुलन भी है. देन मुंबई यू हैव, मुंबई इज़ फॉर कॉटन टेक्सटाइल ऑल्सो एंड वुलन टेक्सटाइल ऑल्सो. फिर है वुलन टेक्सटाइल में मिर्ज़ापुर है, फिर आगरा, शाहजहानपुर, गुड़गांव, जयपुर, बीकानेर, पानीपत, बहुत सारे. सिल्क टेक्सटाइल मिलेंगे पिंक स्क्वायर में, मैसूर, बेंगलोर, कोलार, बेलगांव, then Varanasi, and you have Howrah, Bankura, and Srinagar, Anantnag, Baramulla. These are all the places for silk textile, right? Now next, synthetic textile industry. The cloth made from synthetic fiber made by man is strong. अब हम जो आर्टिफिशियल फाइबर बनाते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, लंबा चलता है, डज नॉट रिटेन रिंकल्स. उस पर रिंकल्स नहीं आते, आयरन करने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है. एंड दिस इंडस्ट्री इज डेवलप वेरी मच. तो कॉटन के सामने सिंथेटिक चल पड़ा. कॉटन फाइबर्स आर मिक्स विद सिंथेटिक फाइबर. हाँ, प्योरली सिंथेटिक हम यूज़ नहीं करते बिकॉज दैट इज एलर्जिक टू द स्किन. तो हम क्या करते हैं, कॉटन और सिंथेटिक मिक्स करते हैं. कॉटन फाइबर आर मिक्स विद सिंथेटिक फाइबर टू गेट मिक्स क्वालिटी और वेराइटी ऑफ क्लॉथ. तो वो सस्ता रहता है प्योर कॉटन से. मेन प्रोड्यूसर ऑफ दिस इंडस्ट्री आर केरला, गुजरात, यूपी, दैट इज उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, एट्सेट्रा.
Other centers of synthetic fiber are सूरत, कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद, कलकत्ता, चेन्नई, मोदीनगर एक्सेट्रा. तो ये सारे हुए हमारे सिंथेटिक या आर्टिफिशियल टेक्सटाइल इंडस्ट्री. फिर एक है शुगर इंडस्ट्री, मतलब यहाँ से बनते हैं गुड़, शक्कर, खांडसरी. मेकिंग जैगरी मतलब गुड़ फ्रॉम शुगर केन ज्यूस इज वेरी ओल्ड इंडस्ट्री इन आवर कंट्री. शुगर इंडस्ट्री स्टैंड सेकेंड आफ्टर टेक्सटाइल इन एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री इन इंडिया. अभी ये सारे एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं. फर्स्ट है कॉटन टेक्सटाइल, सेकेंड आता है नंबर में ऑर्डर में शुगर, सबसे बड़ा हमारी कंट्री में. आफ्टर रीपिंग द क्रॉप ऑफ शुगर केन, जैसे शुगर केन की हार्वेस्टिंग हो जाती है, कटाई हो जाती है, इट हैज़ टू बी स्क्वीज्ड विद इन 24 आवर्स. अब जितनी जल्दी हो सके उसी शुगर केन को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं टू शुगर इंडस्ट्री या गुड़ इंडस्ट्री, क्योंकि जितनी जल्दी उसमें से उसे हम ट्रांसपोर्ट करके 24 घंटे के अंदर अगर जूस निकालते हैं तो ज़्यादा जूस निकलेगा. लेकिन 24 घंटे के बाद जैसे जैसे टाइम अप होता जाएगा, शुगर केन दैट इज वो डंडा वो सूखने लगेगा तो जूस कम निकलेगा, तो शुगर की क्रिस्टल कम बनेंगे या गुड़ कम बनेगा. तो उस शुगर केन की प्राइस कम दी जाएगी टू द फार्मर्स. तो जैसे हार्वेस्टिंग होती है, रीपिंग होती है, उसको बेच देते हैं फैक्ट्रीज में. इट हैज़ टू बी स्क्वीज विद इन 24 आवर्स सो दैट द अमाउंट ऑफ जूस और वाटर इज नॉट रिड्यूस्ड. Otherwise, the sugar content will decrease. That is why sugar factories or industries are located near sugarcane growing centers. इसीलिए शुगर फैक्ट्री और शुगर केन जहाँ पे ग्रो करते हैं वो दोनों पास पास रहते हैं. शुगर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात एटसेट्रा. These industries develop in Gujarat at Bardoli, Gandevi, सूरत, नवसारी, व्यारा, भरूच एंड कोडीनार, तलाला, गिर एटसेट्रा. क्योंकि यहाँ पे शुगर केन ग्रो भी ज़्यादा होता है तो इंडस्ट्रीज भी यहीं पे ज़्यादा डेवलप हुई है. नाउ दिस वी कंटिन्यू विथ इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो टिल देन योर दिस लेक्चर विल बी फॉलोड बाय योर फ्यू वीडियोज विच विल मेक इट ईजियर फॉर यू. तो 2 वीडियो आज देख लो, 2-3 हम देखेंगे इन द विद द नेक्स्ट लेक्चर. सो टिल देन थैंक यू सो मच. थैंक यू. टेक केयर.